In the first question, a wire of resistance R is cut into three equal parts. These parts are joined in parallel. Calculate the total resistance of the combination. Means a wire is given, suppose it is having a length of L and it has a resistance of R. Now it is cut into three equal parts. All of them will be having length L by 3, L by 3, L by 3. And as resistance is directly proportional to length, so resistance of each part will be reduced to R by 3, R by 3 and R by 3. Now they are joined in parallel. You have to calculate total resistance. We will use the formula to calculate total resistance. 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by R equals to 1 by R1. R1 means R by 3. R by 3 plus 1 by R by 3 plus 1 by R by 3. So simply solving it, we will get 3 by R plus 3 by R plus 3 by R equals to 9 by R. But 1 by R equals to R by 9 means finally R equals to R by 9. So the net resultant resistance of the combination will be equal to R by 9. Moving on to next question, define electric power. Electric power gives us an idea of rate of consumption of electric energy. Any device that we use will certainly consume electric energy, but power will give the rate of consumption of electric energy. It is calculated by the formula P equals to VI I square R and V square by R, and it is measured in watt kilowatt. Next part is define 1 volt. Suppose we are using the formula P equals to VI. If 1 volt potential is given and current of 1 ampere flows, then certainly power is said to be 1 volt. The next question is, suppose a circuit with 12 volt battery with a 5 ohm resistor in series with a parallel combination of 10 ohm and 15 ohm. मीन्स एक सर्किट गिवन है जिसमें पोटेंशियल है 12 वोल्ट, उसमें जो रजिस्टर है द फर्स्ट इज़ 5 ओम जो कि सीरीज़ में है, इसके साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 ओम और 15 ओम का सेपरेटली, उसके साथ ये 5 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो फर्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट करना है इज टोटल रजिस्टेंस। सबसे पहले 10 ओम और 15 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सेपरेटली हम सोल्व कर लेंगे। टू रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंपली सोल्व करने के लिए उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 150 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 6 ओम। मीन्स 10 और 15 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका फाइनल रजिस्टेंस 6 ओम आएगा। अब 5 ओम और 6 ओम जो है वो दोनों सीरीज में है, दैट मीन्स टोटल रजिस्टेंस 5 + 6 कितना होगा 11 ओम। द सेकेंड पार्ट इज टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट के लिए ओम्स लॉ हम यूज़ करेंगे V बाई आर, V टोटल बाई R टोटल। V टोटल गिवन है 12 वोल्ट, R टोटल 5 और 6 का 11 आया था, दैट मीन्स टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल बी 12/11 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम। इसके लिए डायग्राम को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। 5 ओम का जो रजिस्टर था वो 10 और 15 का जो नेट कॉम्बिनेशन आया था पैरेलल का 6 ओम, मैं फाइनली उसको 6 ओम लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट। अब इस बैटरी से जो टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है दैट इज़ 12/11 एम्पियर। एज यू नो सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, सो जो 5 ओम रजिस्टर है उसमें से भी 12/11 एम्पियर करंट फ्लो होगा और 6 ओम में से भी 12/11 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर हम इसके पोटेंशियल की वैल्यू निकालें V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू गिवन है 12/11 इंटू आर इसका होगा 6, तो 72/11 वोल्ट इसमें एंटर हुई है। तो जो सेकंड रजिस्टर होगा उसमें जो वोल्टेज एंटर हो रही है दैट इज़ 72/11। अगर हमें 10 ओम और 15 ओम में सेपरेटली भी पूछता तो हमें पता है जो 72/11 वोल्ट यहाँ से एंटर हो रही है
आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो दो पाथ्स सेपरेट हो रहे हैं, दोनों पाथ में वोल्टेज सेम एंटर होगी। दैट मीन्स 10 ओम में से भी 72/11 वोल्ट एंटर होगी और 15 ओम में से भी 72/11 वोल्ट पास होगी। The next question is write the relationship between resistivity. Resistivity, as you know, is represented by rho and it is measured in ohm meter. And resistance, as you know, denoted by R and is measured in ohm. So you have to write the relation between resistivity and resistance of a conductor whose length is given L and area of cross section is A. As you know, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. When you combine both these factors, the formula finally comes out to be R directly proportional to L by A. We replace this proportionality with a constant, that is R equals to rho L by A, where rho is the resistivity. So it is the final relation between resistance and resistivity. Hence derive the SI unit of resistivity. इस फॉर्मूला से अगर हम रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी आर ए बाई एल। आर को ओम में मेजर करेंगे, एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर। फाइनली रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी दैट विल बी ओम मीटर, जो कि एसआई यूनिट होगी। द सेकेंड पार्ट इज वाई आर अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, सच एज बल्ब, हीटर, प्रेस, दे यूज अलॉयज बिकॉज उनका जो टारगेट है हीट प्रोड्यूस करना। एंड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एच इक्वल्स टू आर I square into R into T. Higher the value of R, higher will be the heat developed. So जो फर्स्ट रीज़न है alloy को यूज़ करने का, that is their higher value of resistance. Second, they don't get oxidized easily. Atmospheric ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज नहीं होते। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट रिलेशन, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स के कंपेरेटिवली स्लाइटली हायर होता है। हीटिंग एलिमेंट्स में जो कॉमनली यूज़ होता है हीटर में, दैट इज़ नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन का जो अलॉय होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कलर्स ऑफ इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन वायर्स थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स। जो 3 स्टैंडर्ड कलर्स हैं दैट आर रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड थ्रू विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, ब्लैक थ्रू negative charge flows and green through which no charge flows. Red wire is also known as live wire. The black wire is known as neutral wire, whereas the green wire is also known as earth wire. अगर इससे शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन पूछे तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से शॉर्ट सर्किट होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू, सो वो लाइव वायर से यूज होता है। And the B part, what should be the current rating of an electric circuit so that an electric iron of 1 kilowatt, किलोवाट में पावर होती है। सो एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक डिवाइस की पावर गिवन है किलोवाट, उसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 वाट। और जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है दैट इज़ V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। क्वेश्चन में आपको निकालना है करंट रेटिंग, मीन्स मैक्सिमम करंट जो कि अलाउ करेगा। सो we will be using the relation P equals to VI to calculate I. We will divide P by V. So 1000 को जब हम 220 वोल्ट से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 50/11 और विल बी समवेयर 4 पॉइंट समथिंग एम्पियर। सो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 15/11 को फर्दर सोल्व करने से वैल्यू आएगी। And the third part of the question is what is the function of earth wire. अर्थ वायर जो कि ग्रीन इंसुलेटेड कवर को से रिप्रेजेंटेड होता है, वो बेसिकली एक सेफ्टी वायर होता है जिसको मेटालिक बॉडी जिन भी डिवाइसेस की है उसके साथ कांटेक्ट में छोड़ दिया जाता है। फिर जो प्लग की जो थर्ड पिन होगी जो कि सॉकेट के ये वाले पार्ट में इंसर्ट होगी, जिसको फर्दर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। सो इन केस अर्थ मेटालिक बॉडी में अगर करंट आया है किसी भी रीजन से, वो ग्रीन वायर से होता, थर्ड पिन से होता, इस सॉकेट से होता, फाइनली अर्थ में फ्लो कर जाएगा जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। सो बेसिकली एक सेफ्टी वायर है
जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, स्पेशली जिनकी मेटालिक बॉडी है या जिससे हैवी जो अप्लायंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन केसेस में इसको यूज करा जाता है। 2 लैम्प्स की द फर्स्ट इज रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी रेटिंग में 2 वैल्यू गिवन होती हैं। फर्स्ट पावर की जो वाट किलोवाट से हम पहचानेंगे, सेकंड पोटेंशियल की। बट ये जो पावर होगी ये इतनी वोल्टेज पे डिलीवर कर रहे होंगे। अगर आप वोल्टेज डिफरेंट दोगे तो पावर भी डिफरेंट होंगी। और जो सेकंड बल्ब है वो 60 वोट और 2। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चन की, देयर आर 2 लैम्प्स, द फर्स्ट इज रेटेड 100 वोट, 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की रेटिंग गिवन होती है क्वेश्चंस में। जो फर्स्ट वैल्यू होगी पावर की, इसको वाट किलोवाट से पहचानेंगे। सेकंड, ये जो पावर होगी इतनी गिवन वोल्टेज पे वर्क कर रही होगी। अगर आप वोल्टेज वेरी करेंगे तो पावर भी वेरी करेगी। द सेकंड लैम्प इज हैविंग पावर ऑफ 60 वोट एंड दैट मीन्स इसकी पावर P की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है। दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ 2 लैम्प्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। द फर्स्ट इज ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट एंड सेकेंड इज 60 वोट 220 वोल्ट। जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, दैट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द 2 लैम्प्स फ्रॉम द मेन सप्लाई। दैट मीन्स इससे करंट कितना ड्रॉ होगा। उसके लिए हम करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V/R लिखेंगे। V तो गिवन है 220 वोल्ट, बट हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का R नहीं पता। उसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअल जो लैम्प्स हैं उनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे, R1 एंड R2। फिर इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करके फाइनल R की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। अब R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पावर का जो रिलेशन है P = V/R, जहाँ से R की वैल्यू V²/P, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट लैम्प के लिए V²/V, P, V 220 गिवन है, सो V²/P। P फर्स्ट लैम्प की 100 वाट गिवन है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया दैट इज़ 484 ओम। सिमिलरली सेकंड बल्ब के लिए V²/P जब हम यूज़ करेंगे, इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 4840/6, और आप इसको फर्दर सोल्व करके 2420/3 ओम भी लिख सकते हैं। अब इंडिविजुअल रजिस्टर्स आने के बाद इनके लिए हम पैरेलल में 1/R + 1/R2 का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली 1/R1 फर्स्ट की वैल्यू 484 + 1/R2 सेकंड की 2420/3 ऊपर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2420 एलसीएम आएगा। ये मैथमेटिकली हम इसको सोल्व करते जाएंगे। 8 / 2420, और इसको आप रिवर्स करके लिखना होता है फाइनल में, बिकॉज ये 1/R की वैल्यू होती है बट हमें R की वैल्यू चाहिए होती है 2420/8। सो जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है इसको हम V/R में 2420 / 8 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी इन एम्पियर, बिकॉज हमने सभी SI यूनिट यूज़ की हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 एम्पियर। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डिफाइन इट। यू मे यूज द फॉर्मूला = Q/T, means if 1 coulomb of charge flows in 1 second then current is said to be 1 ampere, or you may use I = V/R. If to a potential or a battery of 1 volt, if a device of 1 ohm is connected then it will draw 1 ampere. Moving on to second question, जिसमें एक न्यूमेरिकल है, the resistance of a wire of 0.01 centimeter radius, दैट मीन्स वायर की रेडियस गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। इसको 1/100 सेंटीमीटर और 1/10⁻², और 10⁻⁻² सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻²
2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये फाइनली रेडियस 10⁻⁴ मीटर हो जाएगी। और उसका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 14 ओम। अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस है 14 ओम। द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल और मटेरियल इज ऑल्सो गिवन। जो रजिस्टिविटी है दैट इज ऑल्सो गिवन 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ। एल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, R = ρL/A। यहाँ से जो L की वैल्यू आएगी हमें, दैट विल बी RA/ρ। अब हर चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे। रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 14। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता, हमें उसको πr² से कैलकुलेट करना होता है। पाई की वैल्यू 3.14 × R, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। हमने ऑलरेडी 10⁻⁴ कर रखा। R² करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁸। 10⁻16 नहीं, 10⁻8 आएगा। डिवाइडेड बाई रजिस्टिविटी की वैल्यू हम पुट करेंगे 44 × 10⁻8। ये भी ओम मीटर में है, मीन्स यूनिट हमारी करेक्ट है। सो इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई आगे हम करके लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो किस में आएगा, मीटर में। कैलकुलेट में इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज हर बार न्यूमेरिकल में जो डेटा या जो वैल्यू गिवन होंगी वो डिफरेंट होंगी। सो हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, फर्स्ट फैक्टर रेडियस जो गिवन है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी गिवन नहीं होता, उसके लिए हम पाई × R², ये जो R की वैल्यू आए इसका स्क्वायर करके हमें फाइनली वैल्यू पुट करनी होती है और फिर उसको मैथमेटिकली सोल्व करना होता है। वैल्यू हर बार या न्यूमेरिकल में सेम आए ये कोई ज़रूर नहीं है, इसलिए मैथमेटिक पार्ट आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक और इम्पोर्टेंट टाइप है न्यूमेरिकल की। देयर आर 2 लैम्प्स गिवन A एंड B ऑफ रेटिंग। ये दोनों लैम्प्स की डिफरेंट रेटिंग गिवन है। सपोज ये फर्स्ट लैम्प की है और जो सेकंड लैम्प की रेटिंग गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 लैम्प्स, और वो भी A/B में। दैट मीन्स जो फर्स्ट हमें रेशियो लेना है वो फर्स्ट और A वायर का, लैम्प का, और जो सेकंड लेना है हमें वो B लैम्प का लेना है। बट उसके लिए हमें दोनों लैम्प्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे। जैसा कि एक प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, P = V²/R के रिलेशन से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं V²/P। सो इस रिलेशन को जब हम फर्स्ट वायर के लिए यूज़ करेंगे, V फर्स्ट लैम्प में 220 × 220 डिवाइडेड बाई 50। इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली तो ये आपका 968 ओम आएगा। और जो सेकंड बल्ब और लैम्प है उसके रेजिस्टेंस के लिए V²/P, P इसका 24 है, हम 484 × 100 डिवाइडेड बाई 25, इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1936 ओम। सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आने के बाद तो हम उनका रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट का 968 है, सेकंड इज़ 1936, तो ये 1/2 और वी कैन से 1:2। हर बार न्यूमेरिकल में डेटा सेम नहीं होंगे, बट ये जो मल्टीपर्पज़ फॉर्मूला है जो कि पावर्स और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड गिवन है दैट मीन्स टाइम आपको कितना कंसिडर करना है, 1 सेकेंड। ड्यू टू करंट इन रजिस्टर ऑफ 4 ओम, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस इज 400 जूल्स। जूल हीट की या एनर्जी की जो यूनिट है, दैट मीन्स हीट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम 1 सेकेंड आपको यूज़ करना है। कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और V कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है H = I²RT, वो हम यूज़ करेंगे। इसको इसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे I² को हम V²/R² × R × T,
इसको आप फाइनली वी स्क्वेयर बाई आर इंटू क्या लिख सकते हैं, टी। सो एच की वैल्यू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी की फॉर्म हम यूज़ करेंगे, बिकॉज टी हमें गिवन है 1 सेकेंड, एच हमें गिवन है और रेजिस्टेंस हमें गिवन है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, वी स्क्वेयर। तो यहाँ से मैथमेटिकली वी स्क्वेयर का जो आंसर आएगा वो एच डिवाइडेड बाई आर, सॉरी एच मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई टी। एच की वैल्यू गिवन है 400 जूल, यूनिट भी ठीक है। रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है ओम में, डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकेंड आपको लेना है। तो जो वी स्क्वेयर का आंसर आएगा ये 1600 वोल्ट आएगा, बट हमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी 40 वोल्ट। Moving on to the next question, an electric bulb is connected to a power supply of 220 volt, means V की वैल्यू गिवन है और यूनिट भी वोल्ट है, ऐसा यूनिट। If the current drawn from the bulb by the bulb from the supply is 500 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू गिवन है बट क्लियरली जो यूनिट है मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, या फाइनली हम इसको 5 इंटू 10⁻⁻1 और 5/10 या 0.5 एम्पियर वैल्यू लिख सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है हमें, पावर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें P इक्वल्स टू वी आई का जो पावर के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, द फर्स्ट इज़ वी आई, सेकेंड इज आई स्क्वेयर आर एंड द थर्ड इज वी स्क्वेयर बाई आर। इसमें V और I की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, सो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे। V की वैल्यू गिवन है 220 इंटू आई की वैल्यू को मैं 0.5 और 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 110, बट हम उसके साथ जो यूनिट यूज़ करेंगे वोट, क्योंकि जो दोनों वैल्यू गिवन है वी और आई की या हमने कन्वर्ट की वो ऐसा यूनिट थी, सो पावर की यूनिट भी वाट आएगी। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच, मीन्स 4 रजिस्टर गिवन है, सभी का रेजिस्टेंस 12 ओम है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए स्क्वेयर ABCD। सपोज उनको हम कनेक्ट करके एक स्क्वेयर बनाते हैं, इसको हम A पॉइंट, इसको आप B पॉइंट, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। दे ऑल आर ऑफ 12 ओम। You have to calculate the resistance of network between the 2 points 1 and 2. 1 and 2 means जो adjacent point होंगे, फर्स्ट जिसको आपने माना है, सपोज करो फर्स्ट हमने A पॉइंट को माना है एंड सेकंड एडजेसेंट वो आप B भी कैलकुलेट ले सकते हैं या फिर D भी हो सकता है। सपोज करो मैं A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सो क्लियरली आपको विजिबल है ये जो 3 रजिस्टर्स हैं, ये और 12 ओम का ये तीनों तो आपस में किस में है, सीरीज़ में। तो हम इन तीनों को सोल्व करके फाइनल 12 + 12 + 12 दैट विल बी 36 ओम। तो इन तीनों का तो एक नेट रेजिस्टेंस 36 ओम बना लेंगे, बट ऊपर और A और B के बीच जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है वो अब इस 36 ओम के रेजिस्टेंस के साथ किस में होगा, पैरेलल में। पैरेलल के लिए हम अगर 2 रजिस्टर्स आपको गिवन हो, जैसे 12 और 36 का हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, सो टाइम बचाने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इनका सम, 12 + 36 48 आएगा, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होगा, 432 डिवाइडेड बाय 48। आई गेस इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो 432 ओम आता है। दैट मीन्स जो नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 9 ओम।